Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AgriAddict. So in this video, today we have our topper from the ICR PG Plant Sciences 2024, Tushar Kumar Jha, and he will be assisting you people and guiding you of how he actually prepared for this exam from past 2 to 3 years. He has been started his preparation from very third year only. So he will be able to completely tell you about his preparation and his preparation journey overall for 2 years, and also like what are the different subjects he has read and what were the sources for the different subjects. So stick with me until the end of the video to get a full benefit. So I welcome you, Tushar, to this video. I would request you please introduce yourself. Namaste, sir. Namaste. Myself, Tushar Shivkumar Jha, and I am from Kota, Rajasthan. I did my UG from Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapit, Parvani, Maharashtra, with the overall OGPA of 8.84. I did my preparation of plant science JRF from the AgriEdit platform since 2023, and I scored 382 marks in that ICR PG Plant Science JRF exam. Thank you, Okay. sir. Okay. Congratulations again. We are very proud of you for securing of such a very good marks in these exams. It shows your dedication, hard work, and the patience that you have put for the 2 years, which resulted you in a fruitful way. Thank you so much. So now, just talk about the subjects, give the detailed information about what are the different subjects in the plant sciences, and then we will be starting to discuss about each one of them in detail. Yeah, please. तो सर जैसे कि हमें पता है कि प्लांट साइंस जो है एक बड़ा सिलेबस है। जैसे कि इसमें हम 7 to 8 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। कुछ होते हैं मेजर सब्जेक्ट, कुछ होते हैं माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट की जैसे मैं बात करता हूँ तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ये हमारा पहला मेजर सब्जेक्ट है। दूसरा है प्लांट पैथोलॉजी और तीसरा है सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तीन ओवरऑल मेजर सब्जेक्ट्स में आते हैं, जिनके 10+ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और बाकी जो माइनर में आते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी एंड जनरल एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेस। ये देखने को Okay. मिलते हैं हमें माइनर सब्जेक्ट में, और ये तीन जो होते हैं हमारे मेजर सब्जेक्ट्स। Okay. So, the students, what I would like to mention or emphasize here is, so in the list of major subjects, we have actually included agriculture microbiology. But if you just see the number of questions that are being asked in the exams, अगर तुम लोग number of questions को count करोगे each of the subjects, then you will see only 3 to 4 questions or maximum of 5 questions that will be asked in the microbiology. So as Tushar said, जैसे कि तुषार ने बोला कि इसको माइनर में भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, इस माइक्रोबायोलॉजी के लिए पूरा 2-3 बुक पढ़ते हैं, अलग अलग सोर्स में ढूंढ के निकाल के पढ़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन अगर तुम लोग सही से मतलब एनालिसिस करोगे पेपर को, तो पता चलेगा कि ये हर साल ओनली 2 to 3 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए इसको मेजर से ज़्यादा माइनर में कंसिडर करके इसको लेस इंपॉर्टेंस देना ही प्रिपरेशन के लिए अच्छा रहेगा. So this is what I feel, and also like this is what Tushar has conveyed, that my agriculture microbiology, it can be considered in the minor based on the number of questions that are being asked in the previous years. If you do the detailed analysis, you'll be getting to know about how many questions will be asked from the different subjects. Anyhow, in our master course, we'll be emphasizing about these things in a separate PDF. So if you are doing your own analysis, you can do it. Otherwise, you can join our master course where we'll be giving a step-by-step guide on these subjects and we'll guide you throughout the exam. Okay, thank you so much. Next, Tushar, please continue with the different subjects and the sources that you have referred for completion of the syllabus. Let's start with the genetics. Yeah. तो सर जेनेटिक्स के लिए सबसे पहले जो है ये बुक्स अभी न्यू एडिशन की आई है, 6th एडिशन की। तो सर मैंने उसको प्रीफर किया था, ओके. दैट वन, सेकंड वन। या. सो और इसमें ऐसा भी एक डाउट रहेगा स्टूडेंट्स को कि दो बुक है ना इसमें, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स एक है और सिर्फ जेनेटिक्स है. सो इन दोनों में तुमने कौन सा बुक रेफर किया था? सर मैंने फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स प्रीफर किया था सर, क्योंकि ओके. सर जो यू. मेन बुक्स है जेनेटिक्स, जी सर, हम्म. जो मेन बुक है या. जेनेटिक उसमें क्या है सर, कंसेप्ट लेंदी है। मतलब हम्म. हम उसको पढ़ सकते हैं, हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बट फॉर जीआरएफ ये सफिशिएंट है। इससे बाहर ओके. कुछ भी नहीं आएगा। ये बुक जो है सर बिल्कुल बेटर है। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो 100% क्वेश्चन इसी के अंदर से देते हैं। ओके. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, बता देना कि पूरा जेनेटिक्स कैसे कवर किया था तुमने. जी सर, जैसे कि सर इसमें शुरू का पोर्शन है,
हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, और जो साइटोलॉजी और साइटोजेनेटिक्स है सर, वो आई थिंक इसमें बेटर दे रखा है। इसके बाद हमें ज्यादा ओके। प्रीफर नहीं करना चाहिए, और आपके क्रिस्प नोट एक बार रिविजन के लिए पढ़ लेने चाहिए। ये दो चीज प्रीफर करी थी सर मैंने। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक आता है सर, मेंडेलियन जेनेटिक्स, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, ये हमको इससे प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि इसमें ठीक अच्छे से दे रखा है, चीजों को बहुत बेटर वे में एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं मोलिकुलर जेनेटिक्स की। जैसा कि देखते आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे, एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें इतना बड़ा टॉपिक इससे पढ़ना, आई थिंक थोड़ा टाइम का हम यूज टाइम अच्छे सेव से कर नहीं कर सकते हैं इसको। पाएंगे। हाँ। जी सर। तो इसके ओके। लिए हमें जेनेटिक्स पीजी की बुक प्रीफर करनी चाहिए, ओनली फॉर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ओके। और अगर आप टाइम, और जैसे कि अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हो, जैसे 1 ईयर है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, तो एक बार इसके भी गो थ्रू हो जाना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो मिनिमम जो 4 चैप्टर्स है, द जेनेटिक मटेरियल, रेप्लिकेशन एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आफ्टर डेट, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये 4 चैप्टर्स जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको एक बार इन 4 चैप्टर्स को इस बुक से कर लेना चाहिए। बाकी जो हमारे कंसेप्ट है, रेप्लिकॉन मॉडल है, उसके बाद जो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन से, इसमें वोबल हाइपोथेसिस है, वो सब इससे थोड़ी स्ट्रोंग हो जाएगी हमारी। जो उनसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं असेसन रीजन बेस्ड, वो हम जेनेटिक्स मेड इजी से आई थिंक थोड़ा करने में दिक्कत होगी, हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे पूरा। जैसे कि इस साल भी एक क्वेश्चन आया था रेप्लिकेशन से, वो आई थिंक उसको करने के लिए, असेसन रीजन के लिए आई थिंक इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इन 4 चैप्टर्स के लिए फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स को प्रीफर करनी चाहिए, बाकी पूरा मॉलिकुलर जेनेटिक्स आपको जेनेटिक्स मेड इजी से रेफर करना चाहिए। ओके। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए तुमने क्या किया था? सर पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए मैंने इसको, आपका जो वीडियो था शुरू में आपने दिया था आरडीबी इनवर्स, हम्म। उसके जस्ट लगाए थे, और जो शुरू में ही है हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, उसमें जो थ्योरीज है उसी को पढ़ी थी। पीछे के पूरे 3 चैप्टर रीड नहीं किए थे सर, सिर्फ आरडीबी इनवर्स के ओके। क्वेश्चन लगे थे और जस्ट थ्योरीज पढ़ी थी। ओके। इसके अलावा? इसके अलावा सर मतलब एक बार आप रीड कर सकते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वगैरह, इनकी जो थ्योरी से कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनका आप रीड कर सकते हैं। बाकी इतना ज्यादा बार बार इससे गो थ्रू होने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर फोकस रखना है। और जो थ्योरीज दी गई है, जैसे कि ओपेरियन हेल्डन थ्योरी, ये सब जो थ्योरीज दी गई है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, इन सबको हमें देखना है। पैनजेनेसिस थ्योरी किसने दी थी, पैनजीन टर्म, जेम्बुई टर्म, ये सब किसने दिया था, इन वर्ड्स पे फोकस रखना है। तो सर आपने आपकी पीपीटी में बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में जो आपने डेमो क्लास ली थी पिछली बार, पिछले साल ली थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपने कराया था। तो ओके। वहां से थैंक यू। वो आई थिंक, उसके बाद सिर्फ हमें न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत ओके। है, इसके सिवा कुछ तुमने नहीं। पहला पहले एक्चुअली मेरा क्लास लेके फिर बीडी सिंह पढ़े थे, या बीडी सिंह पढ़ के क्लास लिए थे? कैसे किया था तुमने? मैंने सर पहले आपकी क्लास ली थी, और फिर आपकी क्लास के बाद जो आपके क्रिस्प नोट थे वो एक बार पढ़े थे, तुरंत क्लास के बाद मतलब देख लेता था, कभी कभी डिले हो जाता था, बाकी देख लेता था, और उसके बाद में एक बार इसको पढ़ता था सर। और उसके अच्छा। बाद जैसे कभी रिवीजन का टाइम आया, तो फिर मैं वापस से क्रिस्प नोट देखता था। मुझे ओके। लगता था कि हाँ इसके वीडियो मुझे वापस से देखने हैं, जैसे कि मल्टीपल एलिल्स के चैप्टर से ये थोड़ा सा एक बार में समझ में नहीं आता, इसमें कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, ये सब जो टेस्ट होते हैं, ये सब थोड़ा बार बार देखना पड़ता है, तो इसके लिए हमको बार बार रिवीजन में वीडियोस देखने पड़ते हैं। उसके बाद जो क्रिस्प नोट्स है वो पढ़ना पड़ता है, वो बार बार बुक्स में रिवीजन करना पड़ता है। ओके। सो सर ओवरऑल। मैंने पहले आपके वीडियो। हाँ। ओके। सो ओवरऑल तुम्हें जो सिलेबस है जेनेटिक्स का, जैसे तुमने क्वेश्चन पेपर देखा था इस साल का, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज तुम्हें लगा कि क्लासेस जो मैंने किया था उससे काफी हद तक कवर था, जो तुमने क्वेश्चंस देखे थे उसके अकॉर्डिंग? जैसे कि तुम्हें लगता है ना कि जब क्वेश्चन तुम पढ़ोगे तुम्हें को लगता है कि तुम्हें पता चलता है कि वो तुमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। सो अकॉर्डिंगली तो हमने जितना हमारा लाइव क्लासेस में और नोट्स में कवर किया था, इसमें कितना परसेंट तुम्हें लगता है कि कवर हुआ था एग्जाम के अकॉर्डिंग, अप्रोक्स? सर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के ओवरऑल प्लांट साइंस की? नहीं नहीं, जेनेटिक्स का पूछ रहा हूँ अभी। जेनेटिक्स का तो सर आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बाहर से आया था। 100% क्वेश्चन जो है अपने सिलेबस से ही थे, मतलब हाँ। मास्टर कोर्स जो से ही तुम थे। हाँ, ओके, जो तुम क्लास में या नोट्स में पढ़े थे और तुम जो बुक्स जो रेफर किए थे, उसके साथ साथ जो क्लास और नोट्स जो मैंने कवर किया था उसमें था, तुम्हें बिल्कुल नहीं लगा कि कोई भी क्वेश्चंस मतलब आउट आउट ऑफ द बॉक्स आया हो, जिसको तुमने देख के सरप्राइज हुए हो, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था नो जेनेटिक्स में स्पेसिफिकली? नो ओके। सर। ठीक है।
ओके, तो तुमने जब एग्जाम निकाला था, जैसे कि 382 मार्क्स आ रहे, इसमें ज्यादातर मिस्टेक्स किस सब्जेक्ट में हुआ है? सर इसमें आई थिंक ज्यादातर मिस्टेक जो है सर मेरा माइक्रोबायोलॉजी में हुआ है, क्योंकि मैं उसे पढ़ के भी नहीं किया था, और पैथोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी सर मैंने सिंगल वर्ड भी रीड नहीं की थी, तो उसके आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चन आए थे, उसमें से हम्म, वो 3 to 4 में अटेम्प्ट करके आया था, बट वो 3 to 4 वो नेगेटिव गलत हो गए थे। गए। ओके, सो अप्रॉक्स लाइक 4, मतलब 20 मार्क्स उसमें हो गया पूरा। जी ओके, 20 मार्क्स मतलब 5 मार्क्स चला गया तुम्हारा। 4 मार्क्स, ओके ठीक है। तो दिस इज अबाउट जेनेटिक्स। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्लान ब्रीडिंग के बारे में बताओ। और सर जेनेटिक्स के बारे में एक चीज बोलना और मैं भूल गया। जेनेटिक्स के लिए ऑब्जेक्टिव बीडी सिंह एंड बी के प्रसाद बुक है, इसको हमें प्रीफर करनी है बिल्कुल। जैसे हम ओके। चैप्टर रीड कर रहे हैं उसके बाद इंस्टेंटली हमें इसके क्वेश्चंस प्रीफर करने हैं, और क्वेश्चंस के बाद साथ में जो पीछे की तरफ इंडिसेस दे रखी है, इंडेक्स दे रखी है, उनको भी हमें सोल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डाटाज होते हैं, जो थ्योरीज होती है, जो साइंटिस्ट के इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा पीछे डिटेल में दे रखा है। इसको भी हम पढ़ते हैं तो हमें काफी नॉलेज बूस्टअप ओके, होता है, नॉलेज गेन होती है हमें। ये जैसे चीज कि हमने हमको भी हमें मतलब उसको हमें फॉलो, जब जैसे कि हमने भी उसको फॉलो कर रहे थे जब हम प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव बीडी सिंह, ऑब्जेक्टिव जेनेटिक्स बीडी सिंह और बीके प्रसाद में, लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा हाई एंड है, ऐसा लगता है नहीं लगता है तुम्हें? तुम्हारा क्या इसमें वो है, ओपिनियन है? नहीं सर, ऐसा है ना, जैसे अगर हम इसको रीड करते हैं, जेनेटिक्स बुक को इसको रीड करते हैं सर, तो उसके बाद आई थिंक जो इसमें क्वेश्चन है वो इससे फ्रेम किए गए, इससे बिल्ड ओके। किए गए क्वेश्चन, वो बाहर से उन्होंने कहीं से भी नहीं रखा था। जब सर हम इसको सोल्व करेंगे इस बुक को, तो हमें सिर्फ जो क्वेश्चन दिखेंगे वो इसकी लाइन से दिखेंगे। अगर इसको हमने ओके। अच्छे से रीड किया, आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें से रेयरली एक आध क्वेश्चन जो वो थोड़ा घुमा के देंगे, वो हमें थोड़ी दिक्कत होनी चाहिए बनने को। बाकी अगर हमने जेनेटिक्स की बुक को अच्छे से पढ़ा है, नोट्स को अच्छे से पढ़ा है, क्लासेस अच्छे से लिए, तो इसके आई थिंक अगर 100 क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 90 क्वेश्चन तो हमें फर्स्ट राउंड में बन जाएंगे। ओके, और जैसे कि तुमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी अटेंड किया होगा, अग्री टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ऑफ जेनेटिक्स, तो कितना रिलेवेंसी लगा तुम्हें, रिलेवेंट लगा इसमें की चीज़ों में, कि जो भी तुम पढ़ रहे थे, जो भी तुम चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रहे थे, वो क्वेश्चंस आ रहे थे मॉक टेस्ट में, कैसा था वो? ये सर काफी सारे क्वेश्चन, जैसे आप कभी डालते थे 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का सेट डालते थे हर क्लास के बाद, जो आप मॉक टेस्ट अपडेट करते थे, उसमें बिल्कुल 10 से 12 क्वेश्चन आराम से इससे मैच होते थे, जो मतलब बीडी सिंह के पैटर्न पे बेस्ड होते थे। आपकी क्विज नोट भी बीडी सिंह के पैटर्न पे बेस्ड होता था। वो लगता था कि हाँ रिलेवेंट क्वेश्चन है, मतलब आउट ऑफ स्टॉक बनाया गया क्वेश्चन नहीं। ऐसा कभी हुआ है कि तुमने पढ़ लिया और मॉक टेस्ट अटेंड किया, उसके बाद तुम डीमोटिवेट हो गए कि क्या ये क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा नहीं, ऐसे कभी लगा कि ऐसा होता है ना अक्सर कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाते हैं, हर एक जगह लगाते हैं, कोई फ्रेंड्स भी क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि तुम्हें मालूम ना हो, वो थोड़ा डीमोटिवेट फील हो जाता है। ऐसे कभी हुआ था मॉक टेस्ट जब अटेंड किए थे तभी? तो ऐसा है कि मतलब जिस चैप्टर को मैंने मतलब वीडियोस देखा है, और उसके बाद नोट्स पढ़े हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव मतलब रीडिंग पढ़ी है, और ऑब्जेक्टिव भी एक बार लगाई है, तो बिल्कुल नहीं। उसमें तो सर फिर ऐसा रहता था कि जैसे अगर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 25 प्लस तो करेक्ट होती थे, तो फिर ओके, उसके ऑन बाद तो एवरेज ऐसा लाइक लगता था। ओनली फाइव फाइव क्वेश्चन छूट जाते थे, 25 प्लस तो आराम से हो जाता था। ओके ठीक है, जेनेटिक्स का तो हो गया। नेक्स्ट, प्लान ब्रीडिंग के बारे में बताओ। जी सर, प्लांट ब्रीडिंग के लिए सर एक बुक्स जो सर फर्स्ट इमेज है वो भी बेस्ट है, और मैंने ये वाली प्रीफर की थी सर, ये वाली बुक ज्यादा बेस्ट है आई थिंक। इसमें ओके, ये बीडिंग से, प्लान ब्रीडिंग बाय बीडी सिंह है ना? प्लांट ब्रीडिंग बाय बीडी सिंह न्यू एडिशन है हाँ, सर, न्यू 12th एडिशन। एडिशन है, आपको प्रीफर करना है सर। Okay. तो So सर I ये would प्रीफर। also, students, I would also recommend you, like if you are preparing for these exams, go for the latest editions. लेकिन वो प्रॉब्लम हो सकता है कि लेटेस्ट एडिशन में काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, तो इसके लिए अगर क्लासेस लोगे तो उसमें काफ़ी हद तक अच्छे से एक्सप्लेन किए होंगे, तो वो तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन पुराना वाला जो है मटेरियल, उसका नोट्स भी मिल जाएगा, तुम्हारा सीनियर्स भी होंगे जो उसके उसको पढ़ के मतलब जेआरएफ एसआरएफ निकाले होंगे, तो अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन तुम लोग जब नया एडिशन खरीदोगे ना, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि नया नया इन्फॉर्मेशन डाला हो। तो इसके लिए अगर कोई ऑनलाइन मास्टर कोर्स, जैसे कि हमारा कोर्स में पूरा इन डिटेल इन डेप्थ में सिखाया जाता है, तो अगर उसका session लेते हो तो पूरा आराम से हो जाएगा कोर्स। और तुम्हें पर्सनली क्या लगता है, कुंदन सिंह बेटर है या बीडी सिंह? ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि क्या पढूं, कुंदन सिंह पढ़ना चाहिए या बीडी सिंह पढ़ना पढ़ना चाहिए? तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसमें, तुमने क्या किया था? सर जैसे कि ओपिनियन की आप बात कर रहे हो, तो सर जैसे कि आजकल का जो पैटर्न है, एआर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो सर एआर टाइप क्वेश्चंस आप कुंदन सिंह से पढ़ के बिल्कुल सोल्व नहीं कर सकते सर, बिल्कुल भी नहीं ओके। कर सकते आप।
अगर आपको ए आर टाइप सोल्व करने हैं तो आपको ये बुक को एटलीस्ट वन टाइम तो पढ़नी ही पड़ेगी, इसके और बिना तुमने सर बीडी तो सिंह प्लान बिल्डिंग को पूरा पढ़ा था या सेलेक्टेड जो सिलेबस में थे उसी को पढ़े थे? नहीं सर, पूरा नहीं पढ़ा था सर, मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े थे। तो इसमें से सर ये अबायोटिक स्ट्रेसेस और बायोटिक स्ट्रेसेस वाले टॉपिक्स थे, उनको मैंने देखा भी नहीं था सर, उनको मैंने छोड़ दिया था, लीव इट कर दिया था। ओके। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरे किसी सीनियर ने बोला था कि इससे एक क्वेश्चन आएगा, उस एक हम्म। क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 120 पेजेस या 150 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन बन जाएगा। और कभी कभी क्या होता है सर, कॉमन सेंस के बेसिस पे भी हम स्ट्रेसेस वाले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला था कि इस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी टॉपिक पे फोकस करना। अगर एक क्वेश्चन छोड़ के भी आते हो और बाकी करके आते हो तो मार्क्स वहां पे आप इंक्रीज कर सकते हो, मतलब अपना टाइम सेव करके दूसरे चैप्टर्स को दे सकते हो। तो स्ट्रेसेस वाले चैप्टर्स मैंने सर छोड़ दिए थे इसमें। और एक ओके। नया चैप्टर आया है, तो नई टेक्निक्स आई है सर, इम्प्रूवमेंट्स टेक्निक्स आई है, नया चैप्टर एड हुआ है सर नए एडिशन में, तो उसको भी स्किप करना है क्योंकि वो एसआरएफ लेवल का है, तो उसको भी स्किप ओके। करना है सर। ओके। ओके नेक्स्ट। तो ये तो हो गया एक टेक्स्ट बुक के बारे में। नेक्स्ट तुमने क्या क्या किया था प्लान बिल्डिंग में? सर प्लान रीडिंग में जैसे कि मैम के लेक्चर्स देखे थे, उनके क्रिस्प नोट देखे थे, उनके नोट्स काफी मतलब अच्छे रहते थे सर। तो 2 से 4 पेजेस में रहते थे, ज्यादा हम्म। लेंदी भी नहीं रहते थे। वो क्लास में उन्हीं से समझाती थी और उन्हीं को बाद में वो शेयर कर देती थी हम्म। ऐप पे। तो वहाँ हमको क्या है, जैसे कि अगर इसको हम रीड कर रहे हैं 30 to 40 पेजेस का अगर चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर वो 3 से 4 पेजेस के नोट्स देख रहे हैं तो सर वो कॉन्फिडेंस आ जाता था। क्योंकि क्या होता है सर, इसमें पूरे पेजेस में हमको एग्जाम्पल किसी भी चीज के, जैसे कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मेल स्टेबिलिटी, उसके एग्जाम्पल्स देखने पड़ते हैं, एग्जाम्पल्स इंपोर्टेंट मैटर करते हैं आज के जो एग्जाम चल रहा है। तो वो एग्जाम्पल्स को सीधा वहां पे लिख देती थी, तो ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती थी क्रिस्प नोट्स बनाने की। जैसे क्या होता है ओके। सर, हम इसको पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं कि इसके नोट्स बना सके, बट नोट्स को प्रोवाइड कर देती थी तो वहां पे भी हमारा टाइम सेव होता था। तो इस हिसाब से सर आई थिंक जो क्रिस्प नोट्स है, और एक बार वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, उसके ओके। बाद इसको पढ़ने के लिए जाना। ओके। तो नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी का भी तुमने एक मेंशन किया है, तुमने इस बुक को भी पढ़ा था इसमें बीडी सिंह का? जी सर, बायोटेक्नोलॉजी मैंने इससे पढ़ा था सर, बट मैंने आई थिंक एक एक बार दोनों चैप्टर्स को पढ़ा था सर। बहुत पहले पढ़ पढ़ लिया था, मतलब 7th सेम के एंड में ही पढ़ लिया था। उसके बाद जब मैं एग्जाम के टाइम पे सीधा मैंने खोला था, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कल्चर होता है, कल्चर मीडिया कौन सा यूज करते हैं हम, कितनी देर तक क्या करते हैं, किससे क्या होता है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, तो इसको मैंने एक बार जो हाईलाइट कर रखा था पहले, उसी को मैंने देखा, मैं पूरा चैप्टर उसको नहीं पढ़ा। ओके। तो तुम प्रिफर करोगे या नहीं करोगे कि कोई तुम्हारा जूनियर्स को कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी बाय बीडी सिंह को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए आईसीआर पीजी प्लांट साइंस के लिए? बिल्कुल सर, पढ़ना चाहिए, मैं तो कहता हूँ 2-2 बार पढ़ना चाहिए। ओके प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी। बिल्कुल सर। ओके ठीक है। और नीचे मेंशन्ड है कि तुमने और इसमें भी मेंशन किया कि एनजी रंगा का वो जो नोट्स है वो और क्लास नोट्स फॉर कमर्शियल प्लान बिल्डिंग और इकोनॉमिक बॉटनी और क्लासेस के बारे में तो तुमने तुमने मेंशन किया है, तो इसके बारे में थोड़ा बताना ऊपर वाले जो नोट्स है उसमें तुम्हें कैसा लगा था, क्या अच्छे चीज़ लगा था तुम्हें? जैसे सर जो एनजी रंगा के नोट्स है सर, उसमें पॉइंट टू पॉइंट चीजें दे रखी है जो हमको मतलब डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए सर जो एनजी रंगा के नोट्स है वो बेस्ट है। और क्लास के ओके। क्रिस्प नोट जो मैंने मेंशन किया कि हमें मेल स्टेबिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि इनमें जैसे कि फ्लोर लाइन वेराइटी हो गई, मास सिलेक्शन हो गया, ये सब हो गए, तो वेराइटी जो डायरेक्टली पूछी जाती है हमसे, तो वो सर जो डायरेक्ट एग्जाम्पल्स होते हैं वो एनजी रंगा में, और जो क्रिस्प नोट्स है उसमें सर बेटर वे में दे रखा है। अगर इसको हम पढ़ने जाएंगे सर प्लांट बिल्डिंग बुक को, इसमें मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट है सर, 30-40 पेजेस का चैप्टर है। अगर हम उसे रीड करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम टेंस हो जाएंगे कि कब तक पढ़े इसको, कब तक खत्म कर। तो ओके। उस सब चीजों के लिए सर जो है बेस्ट। ओके। अगेन मैं वही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मॉक टेस्ट के बारे में, क्योंकि मॉक टेस्ट का बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि कौन सा मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। तो अगर तुम जैसे कि अग्रेड का भी मॉक टेस्ट लिए थे, तुम्हें तुम्हारा क्या कमेंट्स है इसके बारे में कि कैसे थे, तुम्हें तुम्हें कैसा मतलब प्लान बिल्डिंग में कैसा लगा कि क्वेश्चंस? जैसे कि सर मैंने पहले ही बताया था, ब्रीडिंग जेनेटिक्स की ऑब्जेक्टिव बी के पश्चात और इसकी ब्रीडिंग की भी ऑब्जेक्टिव है बी के पश्चात। तो हमको जब भी मॉक टेस्ट हम लगाए, अब हमें मॉक टेस्ट तब तक नहीं लगाना चाहिए जब तक कि हमारे दोनों बुक्स कंप्लीट नहीं हो गए। उसके बाद जो हमने दोनों ऑब्जेक्टिव वो के इसके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर लिए, अगर जब तक हमने इन दोनों के क्वेश्चन सोल्व नहीं किए, हमें मॉक टेस्ट पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मैं ग्रुप मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ सर, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, जो आप हर क्लास के बाद अपलोड करते थे, उसको तो हर क्लास के बाद ही लगाना चाहिए। बाकी ओके जो तुम फुल लेंथ मॉक टेस्ट नॉन बोल रहे हो ना, प्लान साइंस वाला फुल लेंथ मॉक टेस्ट या प्लान बिल्डिंग वाला फुल लेंथ मॉक टेस्ट? नहीं सब्जेक्ट सर, वाइज बोल रहे प्लांट हो? साइंस
ओके, होल यस सिलेबस सर। का बोल रहे हो? और अच्छा, ओके। उसके लिए सर इन दोनों को- उसके लिए सर इन दोनों बुक्स को पहले कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि ओके। काफी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आई थिंक अगर इसको हम कंप्लीट करते हैं तो हमको जो बुक्स होती है उसकी मतलब हमने अच्छे से तैयारी कर ली, उसके बाद अगर हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे अच्छा स्कोर होता है, तो फिर अच्छा मोटिवेशन आता है कि हाँ हमारा अच्छा चल रहा हाँ, ओके। तो एंड वन मोर क्वेश्चन। सी, जैसे कि प्लान ब्रीडिंग को लेकर बहुत लोग स्टूडेंट्स ना घबरा जाते हैं कि क्वेश्चंस बहुत हार्ड रहते हैं और क्वेश्चंस बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। और जैसे कि तुमने इस बार का तुमने पेपर दिया था, तुम्हें कैसा लगा कि इतना मतलब वरी करने का जरूरत है या नहीं प्लान ब्रीडिंग के बारे में? क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा एग्जाम में? तुम्हें क्या लगा इसमें? है। नहीं सर मतलब ठीक है, ज्यादा चैप्टर्स तो हमें सर पढ़ने नहीं है। जैसे जो ब्रीडिंग मेथड्स है उनमें सर हमको ब्रीडिंग प्रोसीजर याद रखना है, तो किस चीज के लिए हम कर रहे हैं, जैसे कि बैक क्रॉस मेथड होता है, ये सब मेथड होते हैं, ये जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन होती है उनको हैंडलिंग के लिए मेजर करते हैं, इस चीज के रील्स बनाने के लिए क्या मेजर करते हैं, हम नील्स के लिए क्या प्रीफर करते हैं। तो हमें बस ये पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि इस मेथड से क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका मॉडिफिकेशन क्या है, जैसे कि पेडिग्री मेथड का मॉडिफिकेशन दिया गया था, सिमिट ने यूज किया था, तो हमको बस मेन मेन पॉइंट्स याद रखने चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा दे रखा है। इसकी ओके। अचीवमेंट्स में सर आपको देखने को मिलेगा कि 100+ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो हमको वो अचीवमेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमको सिर्फ ये ओके। याद रखना चाहिए साइंटिस्ट कौन से हैं, एग्जाम्पल्स कौन से हैं, इसका ब्रीडिंग मेथड का वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, करना क्या चाहता है, ये सेल्फ पोलिनेटेड में यूज होता है, क्रॉस पोलिनेटेड में यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और दो पांच जो अच्छी अच्छी वेराइटी उससे रिलीज हुई है उस मेथड से, उसको हमें यूज में रखना ओके। जैसे कि मैं अगर पूछूंगा तुम्हें कि जेनेटिक्स को ज्यादा टाइम दिए थे या प्लान ब्रीडिंग को ज्यादा टाइम दिए थे, किस में ज्यादा टाइम तुमने निकाला था प्रिपरेशन करने पे, या दोनों साथ में मतलब इक्वली किया था तुमने? है सर। आई थिंक मैंने प्लांट ब्रीडिंग को ज्यादा दिया था क्योंकि ओके। जब मैं पढ़ता मेरे सीनियर्स ने मुझे काफी डरा दिया था कि प्लांट ब्रीडिंग हार्ड होती है काफी ज्यादा, तो इसको पहले से पढ़ के रखना, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, तो उन्होंने मुझे मतलब मैं जिससे भी मिलता था सब मुझे डराते ही थे कि ये प्लांट ओके। ब्रीडिंग हार्ड हार्ड होती है, तो मन में खौफ बैठा हुआ था अच्छा कि नहीं नहीं पढ़ना तो पड़ेगा प्लांट ब्रीडिंग को। तो मैं प्लांट ब्रीडिंग को मैंने शुरू में मतलब जेनेटिक्स तो ऐसा था सर, जेनेटिक्स सेक्शन तो काफी हमको लगाव रहता है, अगर हम हम्म। प्लांट साइंस स्ट्रीम के लिए जाते हैं ना तो हम जाते ही जेनेटिक्स की वजह से, क्योंकि हमें जेनेटिक्स आती है तो हम प्लांट साइंस की तरफ जाते हैं, हमें ब्रीडिंग आती है इसलिए हम प्लांट साइंस की तरफ नहीं जाते, हमें जेनेटिक्स आती है इसलिए हम जाते हैं। तो आई थिंक जेनेटिक्स से तो हमको रहता है कि हाँ ठीक है ये कवर कर लेंगे, जैसे कि मेंडेलियन जेनेटिक्स है, उसमें हम पढ़ते आए कि मेंडेलियन के करेक्टर हमको मालूम है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमको मालूम है, कुछ कुछ जो नए चैप्टर्स पढ़ने होते हैं वो सेक्स डिफरेंशिएशन होते हैं, ये सब चैप्टर्स जो होते हैं मल्टीपल इनको समझना होता है। साइटोजेनेटिक्स जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हर चीज में, ये साइटोजेनेटिक्स सेल डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस मियोसिस, तो इनमें सर ओके। हमको कुछ नया बेस लेवल से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, हमको चीजें बेसिक्स पता होती है, हमको बस उसको ही थोड़ा आगे पढ़ना होता है कि चीजें क्या होती है। बाकी प्लांट ब्रीडिंग में हमको बेस लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे हम पेडिग्री मेथड पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए हमको मालूम होना चाहिए कि हाँ ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स क्या होता है, ट्रांसग्रेशन क्या होता है, पेडिग्री और क्या जितना होता है, तुमने ये ऐसा बोला कि तुमने प्लान ब्रीडिंग में ज़्यादा टाइम निकाला था, तो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि इतना देना सफिशिएंट, सब इतना देना मिनिमम रिक्वायरमेंट है? अगर थोड़ा कम भी टाइम दे के थोड़ा बेसिक लेवल्स का चीज़ें तुम लोग जैसा बोल रहे हो कि सेल्फ पॉलिनेटेड का ब्रीडिंग मेथड, क्रॉस पॉलिनेटेड में कौन सा ब्रीडिंग मेथड, इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करके रखेंगे भी तो प्लान ब्रीडिंग खत्म हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है कि एग्जाम के बाद? जैसे कि सर मेरे हिसाब से तो सर प्लांट ब्रीडिंग को आपको एंड तक टाइम देना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ओके। प्लांट ब्रीडिंग जो है सर बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म्स है, अगर ओके। पढ़ने जाओगे तो जैसे सर मेरे को एंड तक भी ये क्लियर नहीं था कि मोनोशियस डाइशियस वो कंफ्यूज बाइसेक्सुअल होता यूनिट, था। एंड तक हाँ। भी सर मैं कंफ्यूज होता था कि ये क्या है, फिर मैं बैठ के समझता था कि नहीं ये एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो जाए तो वहां पर मिस्टेक हो जाएगी, तो इसलिए सर मैं क्या एक ही चैप्टर पढ़ता रहता था कि हाँ ठीक है, जैसे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मुझे लगा कि भूल जाऊंगा इसको क्या होता है, तो उसको मैं पढ़ता रहता था बीच बीच में, कभी मन किया तो पढ़ लेता था। तो ओके। प्लांट ब्रीडिंग को सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, आई थिंक जो सिलेक्शन में फैक्टर रहता है वो प्लांट ब्रीडिंग रहता है सर, क्योंकि इस साल ओके। प्लांट ब्रीडिंग सो द की इज रिवीजन। ज्यादातर जो प्रिपेयर करेंगे वो रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें ताकि जो भी चीजें मतलब कंफ्यूजिंग हो वो मतलब क्लियर हो जाए।
ओके ठीक है। और बाकी तो सबने, बाकी सब तुमने तो बता दिया कि कौन कौन से सोर्स यूज किए थे, कैसे तुमने प्रिपरेशन किया था प्लान बिल्डिंग के लिए। ठीक है ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट पे। प्लांट पैथोलॉजी, ये भी एक मेजर सब्जेक्ट हो जाता है प्लांट साइंस में। तो इसमें भी थोड़ा डिटेल में बताना कि तुमने कौन कौन सा बुक पढ़ा था और कैसा रहा तुम्हारा प्रिपरेशन। तो सर बुक्स तो सर अभी मेरे पास ज्यादा है नहीं, इधर उधर हो रखी है, बट जितनी भी है मैं उससे बताऊंगा। जैसे कि सबसे प्राइमरी जो बुक बोल रहे हो तो सर ये एस सी दुबे होती है। तो मैंने थोड़ा सा कवर अप कर रखा है कि एस सी दुबे की हमारी बुक है, इसका अभी लेटेस्ट एडिशन भी आ चुका है, मेरे पास तो ओल्ड वाला है। तो ओके। जिसका लेटेस्ट एडिशन है उसको सर प्रीफर करना, उसमें थोड़ा आई थिंक कंटेंट एक आध चीजें अच्छे से डाल रखी है, और कुछ जो इसकी मिस्टेक थी एक आध जगह उसको करेक्शन करके लाया गया। इसको पढ़ना है हमको। इसके सिवा जो सबसे प्राइमरी चीज है वो है सर अंग्राव के नोट। उसको सर हमें उसकी जो कोर पीडीएफ है, पहली तो है जिसमें हमको वो सब दे रखा है, बेसिक्स दे रखे हैं, सर्वाइवल, डिसेमिनेशन एंड डिस्पर्जन, इनके बारे में। वो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट एलाइड पैथोलॉजी होती है, उससे सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको हमें सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद अंग्राओं के जो डॉट्स है दूसरे वाले पेज 172 उसको कवर करना है, जिसमें सारी डिटेल्स दे रखी है माइकोलॉजी की, पूरा फंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको प्रीफर करना है। उसके बाद जाके हमको एस सी दोवे प्रीफर करनी है, और एस सी दोवे हमको पूरी वन टू लास्ट रीड करनी है, और इनको मल्टीपल रिवीजन देना है जितनी बार हो सके। जिस दिन आपको लगे कि कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ अंग्राओं की जो शुरू के दोनों नोट और एस सी दोवे कंप्लीट हो चुकी है अच्छी तरीके से कि अब हम मॉक टेस्ट वगैरह के लिए जा सकते हैं, तो उस दिन फिर हमको एलाइड बुक्स प्रीफर करनी चाहिए। जैसे कि ये बुक है उत्पल कुमार भट्टाचार्य, उत्पल कुमार भट्टाचार्य को भी पढ़ना है बिल्कुल। अगर आपको कल से पुशअप करने हैं, तो इसकी एक लाइन से उसको हमें अच्छे से रीड करना पड़ेगा। और इसके सिवा एक बुक और आती है एम के यादव की, पीडीएफ आती है, बुक तो नहीं आती। उसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जेरोक्स करा लीजिए। उसमें वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे कि सर इसमें भी वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन है सर। जैसे कि थ्योरी वाले भी हैं और डिफरेंशिएशन वाले भी, कि जेंथोमोनास सूडोमोनास, इनमें डिफरेंशिएशन, न्यूकर राइजोपस, तो इसमें अच्छे से है ना क्लासिफिकेशन दे रखा है। पीछे वन लाइनर वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आगे साइंटिस्ट के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, हिस्ट्री से भी दे रखे हैं, माइकोलॉजी से भी दे रखे हैं, वायरोलॉजी से भी दे रखे हैं, बैक्टीरियोलॉजी से भी, नेक्स्ट कॉलम भी दे रखे हैं पीछे के। तो इसको आप प्रीफर करिए। उसके बाद आप माइकोलॉजी के लिए एम के यादव बुक बहुत अच्छी है, उसको भी प्रेफर कीजिए, उसके नोट्स मिल जाएंगे। और अंग्राव के नोट्स एस सी दुबे और प्लांट पैथोलॉजी एट अ ग्लांस, अगर आपके पास टाइम है तो उसको भी एक बार देख लीजिए। तो ये आई थिंक ये 4-5 पीडीएफ मोर देन सफिशियंट है। और हाँ, फंगल क्लासिफिकेशन के लिए, जो फंगल कैरेक्टरिस्टिक के लिए डी एलाइस नाम की एक बुक आती है सर, फाइटोपैथोलॉजी डी एलाइस नाम की एक बुक आती है। उसमें से सर हमको दो तीन चीजें पढ़नी है, एक तो फंगल क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, वो बुक हमको डी एलाइस से प्रीफर करनी है। जैसे कि मतलब क्लास होती है तो हमको क्लास में, जैसे कोई क्लास इस साल से होती है तो उसमें आई थिंक जो क्लासिफिकेशन और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डी एलाइस का देना चाहिए। और जो बैक्टीरियोलॉजी और उनका क्लासिफिकेशन चार्ट है वो हमें डीएलआई से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो सबसे सुपीरियर चार्ट है वो डीएलआई का। क्योंकि आप 3 4 5 तरीके की बुक पढ़ोगे तो सर उसमें सब में अलग अलग तरीके का, किसी में एंसवर्थ किसी में हॉक्सवर्थ क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो हम उसमें कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये वाला याद रखें या ये वाला याद रखें। बट जो डीएलआई का क्लासिफिकेशन है वो सबसे बेस्ट है, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी चीजें कहीं से भी कंफ्यूजिंग नहीं होगी। जैसे हम कभी कभी माइकोप्लाज्मा ये सब पढ़ने जाते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बैक्टीरिया है या कोई और ऑर्गेनिज्म है। तो जब हम डीएलआई की बुक देखते हैं तो उसमें उसने हर चीज का बहुत सुपीरियर क्लासिफिकेशन दे रखा है। आई थिंक दो चीजें जो है हमको डीएलआई से कवर करनी चाहिए, तो फंगल क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो दूसरी चीज है वो है क्लासिफिकेशन, हर चीज, फंगस, ओके। बैक्टीरिया एंड। ओके। जैसे कि तुमने हमारा जो नोट्स हमने दिया था उसमें तुम्हें क्या लगता है कितना हद तक, क्योंकि पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी ऐसा तो बहुत वास्ट है सिलेबस, तो उसमें तुम्हें कितना हद तक लगा कि सब कुछ कवर हुआ है, मतलब नोट्स में, क्लास में, और जो तुमने मॉक टेस्ट लिया था उसमें, अप्रोक्स की तुमने कितना परसेंटेज का मतलब कॉन्फिडेंस मिला इस चीज़ से कि काफ़ी हद तक मैंने पढ़ा है और मैंने क्लास में उसको सुना है और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तुम बोल सकते हो कि कितना हद तक के पूरा 100% तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्लांट पैथोलॉजी एक ऐसा है कि पूरा वास्ट है। तो एटलीस्ट तुम्हें क्या लगता है कि कितना हद तक हम कवर कर पाए थे इसमें, जैसे कि तुमने क्वेश्चन जैसा देखा था कि सर एग्जाम में। मैं, मुझे लग रहा है कि 75 से 80% तक कवर किया था, क्योंकि जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं सर। जैसे कि जो बुक्स है डीएलआई का फंगस क्लासिफिकेशन, जब सर हम उसको देखते हैं तो उसमें उसने एग्जांपल्स कवर किए हैं, जबकि उसको हम एस सी दुबे या फिर अंग्राव के नोट से कवर अप करने जाएंगे तो हमको वो क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, आईफा कितने तरीके का होता है, उन सब के क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल हमको इन बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगे।
वो हमें डीएलआई में देखने को मिलेंगे। जैसे कि सर हम जब भी पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादातर स्पीशीज याद रख लेते हैं, जीनस याद रख लेते हैं। बट आई थिंक आज से 2 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें किसी फंगस का सब स्पीशीज भी पूछ लिया था। तो आई थिंक जो क्लासेस होती है इसमें इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाया जाता, सब स्पीशीज तक नहीं जाया जाता। बट क्वेश्चन तो आया था वहां से, तो हमको उस चीज के लिए डीएलआई का जब क्लासिफिकेशन फंगल करेक्टरिस्टिक्स वो देखना, तो वहाँ पे अच्छे से वो चीज दे रखी है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया पैथोलॉजी से सर इस साल 1 या 2 क्वेश्चन थे जो मतलब थोड़े हार्ड आ गए थे, जो मैंने छोड़े थे, वो आउट थे आउट ऑफ द जनरल बॉक्स के थे। क्वेश्चन। हाँ। मतलब सर मेरे लिए आउट ऑफ द बॉक्स थे, जिसमें मतलब जनरल तुम्हारा साइंस। ओपिनियन पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कैसा लगा था। हाँ। हाँ हाँ बताओ। तो जैसे कि पैथोलॉजी के साथ जर्नल पूछे जाते हैं, जनरल बुक्स होती है, और साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। तो सर वो कितना भी पढ़ लो, जैसे कि जितने भी पॉसिबल साइंटिस्ट हो पाए थे सब पढ़ के गया था, बट फिर भी आउट ऑफ द बॉक्स ही पूछ लिया गया था। तो वो चीज बहुत ओके ज्यादा ठीक। वास्ट करना मतलब बहुत मुश्किल है। ओके थैंक यू थैंक यू। तुमने तो बहुत इन डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि तुमने कैसा मतलब प्लांट पैथोलॉजी को अप्रोच किया था। थैंक यू सो मच। तो आगे चल के सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि ये तो सिंपल होगा शायद, मुझे लगता है। तो तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लगा है सब्जेक्ट। जैसे कि सर हमको ये अग्रवाल की बुक प्रिफर कर लेनी चाहिए आई थिंक इसको ज्यादा, क्योंकि लेंदी बुक है नहीं, इसको आप रिवीजन करके रख सकते हो। आई थिंक 5 डेज लगेंगे, 5 डेज में ये बुक पढ़ ली जाती है आराम से। 2-3 घंटे भी आप इस बुक को रोज देते हो तो इसमें हर चैप्टर पढ़ने पढ़ने का नहीं, निमेटोड चैप्टर से प्लांट डिजीजेस वाला है, इनको हमें ज्यादा नहीं देखना, हमें ज्यादा देखना आइसोलेशन वाले चैप्टर्स को, जो स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर्स है, लेजिस्लेशन वाले चैप्टर्स हैं, और सीड प्रोडक्शन वाले चैप्टर से इनको हमें देखना है। और उसके बाद सीड साइंस में तो मेरा ऐसा मानना है सर, आपकी क्लासेस और आपके नोट मोर देन सफिशिएंट, उसके बाद जाना ही नहीं है। अगर ओके। किसी के पास टाइम है तो बिल्कुल इस बुक को पढ़ ले तो ठीक है, कुछ तो गेन हो ही जाएगा। बाकी अगर किसी के पास टाइम नहीं है, जैसे कि कोई लास्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियोस प्लस जो नोट्स है ये दो चीज कवर अप कर ले, मोर देन सफिशिएंट। इससे बाहर क्वेश्चन ओके। नहीं मिलेगा। ओके थैंक यू सो मच। सो दिस इज अबाउट सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, जैसे कि माइनर भी स्टार्ट हो रहा है तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताओ। माइक्रोबायोलॉजी का तो जैसा मैंने शुरू में बोला कि मैंने बुक्स थी सर मेरे पास, इसकी टोरूलिन का खुद की एक बुक आती है सर, तो वो थी, तो मैं उसको देखा कि इतना बड़ा, ये तो पढ़ने का ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैंने उसको छोड़ ही दिया था, स्किप कर दिया था। मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं अपने जनरल स्किल्स के बेसिस पे इसको ट्राई करूंगा बनाने की, और किया भी था मैंने ट्राई। बट थोड़े टर्म्स कंफ्यूजिंग आ गए, मेथेनोट्रोप्स आ गया, तो मुझे लगा कि मेथेनोट्रोप्स भी मिथेनोजन ही होता है, तो वो देख के वो मेरा गलत हो गया। तो जनरल ओके। स्किल्स तो काम नहीं आ पाई मेरी। तो आई थिंक टोरू एंड कपूर बुक बहुत लेंदी है, अगर आप उसको पढ़ने पढ़ने की भी कोशिश करें तो कुछ सिलेक्टिव टॉपिक से वो उस पर पढ़ ले, जैसे कि जैसे कि फर्स्ट फाइव बायोगैस है। चैप्टर्स, लास्ट 5 चैप्टर्स काफी है इसके लिए। या बाकी बायोगैस हद तक तो ये जो एनजी रंगा तुमने मेंशन किया है वो भी मतलब सप्लीमेंट करेगा इस प्रिपरेशन में, अगर कोई मतलब प्रिपेयर करना चाहता है तो मैं और तुम भी तो सजेस्ट करना होगा कि जो तुमने किया था उस जूनियर्स ना करे, तो उसको भी मतलब पढ़े। जैसे कि अगर माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ लेते तो और थोड़ा मार्क्स फेच कर लेते। ठीक है, क्योंकि इतना तो अगर सर मेजर सब्जेक्ट को, इतना ऐसा मेजर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किए हैं तो थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा माइनर भी थोड़ा देख लेंगे, तो उनका मतलब मार्क्स के लिए और प्रिपरेशन और एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। हाँ बताओ। तो सर जैसे कि अगर मैं आज माइक्रोबायोलॉजी पढ़ता सर, आई थिंक 4 क्वेश्चन थे, तो अगर मैं दो भी करेक्ट करता तो हम्म। 392 स्कोर हो जाता। तो हाँ वो वही तो तो। और भी अच्छा कर सकता था, मतलब वो मेरी गलती है कि मैं नहीं पढ़ा उस चीज को, वो मेरा नेगेटिव पॉइंट है। अगर मैं पढ़ के जाता तो आई थिंक तो उससे 3 क्वेश्चन करेक्ट। Yeah, this is तो what like students should take, like whatever this your seniors are like faced, and whatever they are experienced, based on the experience, whatever the mistakes that they have done, so you have to just make sure that you do not commit the same mistake and you improve on that. Okay, thank you so much. So next, other minor subjects जो है उसके बारे में भी थोड़ा इन ब्रीफ बता देना, क्योंकि इन डिटेल में तो इनका जरूरत है नहीं, तुम्हें भी पता है। तो ब्रीफ में बता देना कि क्या क्या किया था इनको। जैसे कि सर बायोकेमिस्ट्री बुक्स है, तो बायोकेमिस्ट्री के सर आप जैसे कि डीएनए यू के नोट्स पढ़ सकते हैं, उसमें भी चीजें दे रखी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। हमको प्रोटीन वगैरह इनसे कभी कभी सर क्या कोर्सेज से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो ये किस फोर्स से स्टेबल रहते हैं। जैसे कि डीएनए में पूछ लेता है कभी कभी कि प्राइमरी फोर्स कौन सा होता है जो उसकी स्टेबिलिटी रखता है, तो हम जनरली हाइड्रोजन डाल के आ जाते हैं, बट वैसा नहीं होता, वो वंडरवाल फोर्स होता है। तो इन सब चक्करों में हम
थोड़ा रहता है कि इसलिए हमको इन टॉपिक्स को नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। टीएनयू के नोट से पढ़ लो या फिर एलन के नोट से, वो भी आप प्रीफर कर सकते हो, उसका जो बायोकेमिस्ट्री टॉपिक। आई थिंक बायोकेमिस्ट्री के लिए आप अगर कोई सा भी नॉर्मल नोट्स भी प्रीफर करते हो वो भी मोर देन सफिशियंट है। ओके। और अगर क्लासेस में जो नोट्स मिलते हैं तो वो मोर देन सफिशियंट है। ओके। ओके। जैसे कि काव्या ने जो क्लासेस करवाया था, वो क्लासेस प्लस वो जो नोट्स दी थी, वो भी सफिशिएंट है बायोकेमिस्ट्री के लिए। फर्क उतना ही है कि स्टूडेंट कितना कॉन्फिडेंट है। अगर स्टूडेंट इतना पढ़ के भी कॉन्फिडेंटली जाता है तो मतलब आराम से मतलब क्वेश्चंस को निकाल सकता है, क्योंकि इस क्लास में तो सब कुछ जो बेसिक से चीज़ें हैं वो कवर हो चुका है। और प्लान चेंज में ये तो माइनर है कि दो तीन क्वेश्चन ही आएंगे आएंगे, तो और बेसिक सा रहेगा। वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना कॉन्फिडेंट है इन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि वो सारे चीज़ तो 11th एंड 12th में ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। उस चीज़ को तो वहाँ से ही लेकर आएंगे। तो उसको थोड़ा रिकॉल करके जो भी आंसर करेगा वो क्लिक हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए सर आई थिंक मैं बोलूंगा कि कोई बुक पढ़ना बहुत ज्यादा ट्रिकी रहेगा इस समय के लिए। मतलब मैंने तो प्रीफर की थी जो ये बुक्स मैंने सामने डाल रखी है। बट आई थिंक सर प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आप एलन के नोट्स अगर प्रीफर करते हैं तो वो एकदम बेस्ट सोर्स है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है प्लांट फिजियोलॉजी के लिए अगर कुछ मुझे प्रीफर करना चाहिए तो अरुण कात्यान बुक आती है, उसको आप प्रीफर कर लीजिए। अरुण कात्यान अगर उसकी लैंग्वेज आपको लेंदी लगती है तो आप उसके लिए नेमरा सुंडा प्रीफर कर लीजिए। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो इसके दो तीन बेनिफिट्स मिलते हैं। जो आप अपने स्टेट के कॉम्पिटिशन के एग्जाम देते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीयूईटी का एग्जाम देंगे आप, वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी आई थिंक पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन बहुत मस्त अच्छे वाले पूछे जाते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी आपको पढ़ना चाहिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक करना थोड़ी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में अगर एक भी हम मिस्टेक करते हैं तो वो थोड़ी दिक्कत है। क्योंकि इसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हमको करने चाहिए। मतलब इसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम भी जाता है। इसको अगर हम एक बार भी पढ़ते हैं, जो पीसीबी बैकग्राउंड से हैं, जिनका मतलब बायोलॉजी रहा था, तो उनके लिए आई थिंक 5 डेज सफिशियंट है इसको पढ़ने के लिए। मैं होल डे नहीं बोलूंगा, 2-3 घंटा अगर वो 5 दिन पढ़ रहे हैं तो बहुत सफिशियंट है। ओके, ठीक है। सो बाकी जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है वो वहाँ यहाँ पे तो तुषार ने मेंशन कर रखा है। स्टूडेंट्स जो जब भी तुम लोग अप्रोच करोगे इस सब्जेक्ट को, प्लीज मेक श्योर दैट इस इन चीज़ों को तुम लोग टच करके थोड़ा कुछ बेसिक सा नॉलेज निकालो, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे इसी टॉपिक्स पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आएगा। ओके। सो बाकी तुमने जो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो तुमने कवर किया था। तो लास्टली जनरल एग्रीकल्चर के बारे में क्या कमेंट्स है तुम्हारा? सर आई थिंक जनरल एग्रीकल्चर के लिए नेमरा सुंडा मोर देन सफिशियंट है। बट जैसे कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, लोग बाग थोड़ा अपने स्टेट के एग्जाम्स पे भी ज्यादा फोकस करते हैं। तो उस केस के लिए अगर आप इसके साथ नेमरा सुंडा के साथ अगर ये इन बुक्स को प्रिफर करते हैं, अरुण कात्यायन की दोनों वॉल्यूम को, तो ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आई थिंक बहुत सफिशियंट हेल्प करेगी आप। बट अगर आपको लगता है कि अरुण कात्यायन बहुत ज्यादा लेंदी है तो सुंडा सफिशियंट है फॉर प्लांट साइंस जेआरएफ एग्जाम। नेमरा सुंडा इज सफिशियंट। इसके आप मॉक टेस्ट क्विजेस बहुत मिलते हैं, और सर ने भी कराए थे शुरू में। तो अगर इसके मॉक टेस्ट लगाते हो आप तो बहुत आई थिंक इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओके। जैसे कि तुमने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि अदर इंपॉर्टेंट बुक्स में इंस्टेंट प्लान साइंस और करंट अफेयर्स का तो मतलब स्टूडेंट्स को पता रहना चाहिए। हर साल एक करंट अफेयर्स का सोर्स निकाल के उसमें तुम लोगों को इंपॉर्टेंट वैराइटीज हो गया, स्कीम्स हो गया, वो सब कुछ देख के जाना ही पड़ेगा। अवार्ड्स हो गया, वो सब चीज़ मेंशन करने का भी जरूरत नहीं है। ये चीज़ तो बहुत कॉमन है कि जब भी तुम कोई एग्जाम निकालने जाओगे उसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो तुम। उसके लिए कोई भी सोर्स होगा। हमने लाइक ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाला चीज़ बहुत सालों से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स बाय विशाल पब्लिकेशन। तो उसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी और जगह भी मतलब इसका सोर्स मिल रहा है तो मैं प्रेफर करूंगा कि इन चीज़ों को तो फोकस करके उसमें जितना हो सके उतना बेसिक से मतलब नॉलेज रखो कि कौन सा वेराइटी इस साल में रिलीज हुआ है, कौन सा मतलब नया स्कीम्स आया है, और क्या अवार्ड्स दिए गए हैं। इन चीज़ों में काफ़ी है। ठीक है। और तुषार, तुम कुछ ऐड करना चाहते हो करंट अफेयर्स में इसके अलावा? करंट अफेयर्स में तो आई थिंक सर जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आए हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, जैसे कि अभी कल परसों ही मोदी जी ने 109 वेराइटीज निकाली है, रेजिडेंट वेराइटीज IRI। तो ये सब चीजें ही पूछी जाती है। जैसे कि पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि जो यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था, या ये वाले पीरियड चला था, तो उस टाइम पे या फिर जो कोरोना पीरियड आया था तो उस पे जो सबसे ज्यादा वेराइटीज का भारत में इफेक्ट पड़ा था वो किस पे पड़ा था। तो आई थिंक मुझे क्वेश्चन याद भी नहीं है ढंग से, वीट पे पड़ा था। तो ये सब चीजें पूछी जाती है कि जो हमारे पीएम है हाँ। नरेंद्र मोदी को किस वेराइटीज पे फोकस ज्यादा किया है, किस चीज के लिए नई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स निकाली है, कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट निकला है,
किस स्टेट को किस चीज के लिए, इस गवर्नमेंट स्कीम के लिए फंड ट्रांसफर किया गया है, कौन सी नई पे नई जगह कौन सी वेराइटीज निकली है, और जैसे कि किनको अवार्ड मिला है एग्रीकल्चर के फील्ड में। जैसे कि अभी कुछ एक मिलेट लेडी आई थी बीच में, मिलेट लेडी को एक अवार्ड दिया गया था, उसने बहुत सारे मिलेट्स को कंजर्व करके रखा था। तो ये सब नई नई चीजें होती है जो पूछी जाती है। ये सब हम डे टू डे अगर एक आध ग्रुप में ऐड हैं, नॉर्मली आजकल सर बहुत सारे ग्रुप्स चलते हैं, उनमें हाथों हाथ डाटा आता रहता है कि आज ये चीज हुई है, आज यहाँ पे ये वेराइटी रिलीज हुई है, आईआरआई ने ये वेराइटी रिलीज की है, पीएयू ने ये वेराइटी रिलीज की। तो डाटा तो हमारे पास आते रहते हैं, उस चीज की दिक्कत नहीं है। अगर हम, एक तो ये बुक है विशाल पब्लिकेशन की, जिसको पढ़ते हैं उसके सिवा जो ग्रुप्स में डाटा आता है उससे हम आई थिंक बहुत ज्यादा गेटर कर लेते हैं, आउट ऑफ स्टॉक भी हमें चीजें मालूम हो जाती है। तो आई थिंक इससे ज्यादा कुछ प्रेफर नहीं करना चाहिए। और जो हम जो भी बुक्स खरीदे जनरल एग्रीकल्चर की, वो हो सके तो जितना लेटेस्ट एडिशन खरीदे वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें वो सब चीजें एडअप होके आती है। तो यही ओके। रहेगा सर। ओके। सो यहाँ पे और एक चीज मेंशन करना होगा कि स्टूडेंट्स देखो, इसमें करंट अफेयर्स का जो चीज है वो एक सोर्स में मिलेगा नहीं। अगर हमने यहाँ पे एक मेंशन किया है कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स फॉर विशाल पब्लिकेशन, इसके अलावा भी बहुत कुछ सोर्सेस होते हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन तुम लोग निकाल सकते हो। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या इन्फॉर्मेशन निकालोगे। जैसे कि तुषार ने बहुत क्लियरली मेंशन किया कि क्या फोकस करना चाहिए। उस चीज कहीं पे भी मिल रहे हो ना, वो उसको ले लो बस। ऐसा मत सोचना कि एक सोर्स को ढूंढने मत निकालो। अगर ढूंढने चलोगे ना, एक सोर्स कहीं नहीं मिलेगा, एक सिंगल सोर्स से कुछ नहीं होने वाला है। तो कोई भी सोर्स हो उसको लेके उस पे जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पे फोकस करना। और यहाँ पे और तुषार ने ये भी मेंशन किया है इंस्टेंट प्लान चेंज। जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं कि जेनेटिक्स में डीसी काफी है, इंस्टेंट प्लान चेंज काफी है। तो ये काफी नहीं होता है कभी। ये सप्लीमेंट करता है अगर तुम लोग टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हो। बिना टेक्स्ट बुक को पढ़ के तुम इन पे ज्यादा फोकस करके अगर एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्रैक करना चाहोगे ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो मतलब प्रोबेबिलिटी निकल जाता है कि बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए। बाकी मतलब स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि कम टाइम में थोड़ा कम सोर्स में लेकर अच्छे मार्क्स भी निकलते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल मेथड है, जो स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं कि एक तरफ से A to Z कवर करके सिलेबस खत्म करके जाए, ऐसा अगर आपका माइंडसेट है कि मैं A to Z मतलब सिलेबस कवर करूंगा और नॉलेज गेन करूंगा, ऐसा और अगर आपका अप्रोच है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का होता है, तो यहाँ पे ऐसा ही प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि टेक्स्ट बुक को पहले पढ़ो, उसके बाद जो ये सब मटेरियल उनको फोकस करो। ये सिर्फ सप्लीमेंट कर सकता है प्रिपरेशन को, ना कि रिप्लेस कर सकता है। ठीक है। सो तुषार, तो हमने तो बहुत अच्छे से मतलब सारा कंटेंट जो भी था हमने डिस्कस कर लिया है। तो एनी कंक्लूडिंग तुम रिमार्क्स देना चाहते हो स्टूडेंट्स को, अपकमिंग जो भी बैचेस है, जैसे कि 2025 2026 और अपकमिंग 2027 फ्यूचर बैचेस जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं प्लान को, एनी कंक्लूडिंग नोट तुम देना चाहते हो तुम्हारे एंड से? जी सर। जैसे कि सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बात की करेंट अफेयर्स की, तो आई थिंक जैसे कि आपका जो मेंटर्स का जो भी बैच है, तो सर उसमें किसी एक स्टूडेंट को आप ये टास्क दीजिए कि वो पूरे मंथली जो करेंट अफेयर्स है उसको कलेक्ट करके रखे। ठीक है, उसकी एक शीट बनाए या एक पीडीएफ बना के रखें, और आप पूरी एक मंथ की, जैसे कि जनवरी की पूरी करंट अफेयर्स की पूरी पीडीएफ आप ग्रुप में अपलोड कर दीजिए। ये करंट अफेयर्स की, जनवरी करंट अफेयर्स की, जैसे कि ये बुक है। जैसे कि हम किसी चीज की दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे लोग नाबार्ड वगैरह है, इन सब की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे भी जैसे पीआईबी करंट अफेयर्स निकालता है। तो वैसे ही अगर जैसे आप मतलब किसी को ये टास्क देते हैं कि वो पूरे मंथ के करंट अफेयर्स निकाल के रखें और उसका एक पीडीएफ अपलोड करें, और उस पीडीएफ के बेसिस पे एक आप ग्रैंड मॉक टेस्ट है, जैसा भी मॉक टेस्ट मंथली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट लीजिए करंट अफेयर्स ओके। का ओनली। ठीक है, बहुत ज्यादा। कितने भी 50-40, तो उससे सर क्या रहता है, आई थिंक जैसे वो पीडीएफ भी रहेगी तो एंड के वक्त पे आई थिंक 6-7 वीक 6-7 मंथ्स की 6 से 7 पीडीएफ रहेगी छोटी छोटी सी, और उस पे 6 से 7 मॉक टेस्ट रहेंगे। आई थिंक आदमी को इधर उधर ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केसेस में, वो सीधा उन वीडियोस को या पीडीएफ को देखेगा, उसके मॉक टेस्ट को वापस से लगाएगा। आई थिंक ये सफिशियंट होगा। अगर ये चीज हो जाती है तो मुझे लगता है कि ये प्रिपरेशन में चार चांद लगा देगी। ओके, ठीक है, थैंक और यू। सर डेफिनेटली दूसरी करेंगे एक इस चीज़ को, इस बात पे इनकॉर्पोरेट करके, करंट अफेयर्स का फोकस करके उसमें जो भी तुमने सेशन दिया है वो डेफिनेटली करेंगे। तो लास्ट में जो हम तुम्हें तो पता है कि इस बैचेस के बारे में तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो उस चीज़ को। इसके रिगार्डिंग मतलब तुम्हारा जूनियर्स को क्या कहना बाद में दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा क्या ओपिनियन रहेगा, सेशन रहेगा इसका कोर्स के रिगार्डिंग? जैसे कि सर ये कोर्स है, मैंने अपनी हर पॉइंट में एक बात जो है, एक दो बात कॉमन रखी है कि वीडियो आपको देखनी है, क्योंकि इतनी ज्यादा लेंदी होती नहीं है, 1 आवर की होती है वीडियो लेक्चर। तो हो सके तो पॉसिबल लाइव क्लासेस लीजिए। अगर कोई नेटवर्क इश्यू है या कोई टाइम का इश्यू है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पॉसिबल है आपके पास टाइम लिमिटेड सोर्स,
नेटवर्क इशू भी नहीं है, तो आप लाइव क्लास लीजिए और वहाँ पे इन वीडियोस को देखिए। वीडियोस खत्म होने के बाद आप उस नोट्स को पढ़िए जो आपने अपलोड किए हैं, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आई थिंक अगर वीडियोस देखिए तो वही नोट्स देते हैं, उसको आप हाफ एन आवर में कर सकते हैं, आधे घंटे में या 1 घंटा मैक्सिमम लग जाएगा। बहुत अगर लेंदी नोट्स भी है तो भी 1 घंटे में आप करके उसके मॉक टेस्ट दे दीजिए। उसके बाद आप अपना जो फ्री टाइम सेल्फ स्टडी का टाइम होगा उसमें इन बुक्स के चैप्टर्स को पढ़िए। जैसा कि मैंने हर पॉइंट में नोटिस किया है कि वीडियो और जो क्रिस्प नोट्स थे, क्रिस्प नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करते हैं। जो वीडियो जो होते हैं उनको हम 1 या 2 बार देख लेंगे, जो पूरी जर्नी है, बट एट द एंड जो काम का होता है वो होता है नोट, क्योंकि रिवीजन के लिए हमको जो क्या। भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो क्विकली मिले और क्विकली हो जाए खत्म, तो वो होता है क्रिस्प नोट्स का इंपॉर्टेंस लास्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द प्राइस। प्राइस को लेकर ज्यादातर डिस्कशन होता है, क्योंकि बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो मतलब सेम कोर्स को निकालते हैं, और लेकिन प्राइस का बहुत डिफरेंस भी हो सकता है कि एक प्लेटफॉर्म का ज्यादा प्राइस आ रहा हो, एक प्लेटफॉर्म का कम प्राइस आ रहा हो। तुम्हें तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हमारा प्लेटफॉर्म का फीस तो तुम्हें पता है कि कितना हम चार्ज करते हैं, इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तो सर जैसे कि फीस है आपकी इस बार की, सर आई थिंक 5,000 रुपीज है सर, आई थिंक फीस इस बार की। तो 5,000 रुपीज में सर, जैसे कि अगर हम 10 मंथ की भी स्टडी करते हैं तो हमको पर मंथ जो कॉस्ट पड़ता है आई थिंक वो 500 पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता 500 बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, क्योंकि इसमें आपको स्टार्टिंग से मेजर टॉपिक से लेकर माइनर सब्जेक्ट्स तक विद क्रिस्प नोट, विद मॉक टेस्ट, विद एवरीथिंग, जनरल एग्रीकल्चर क्विजेस, फाइनल मॉक टेस्ट भी उसी में बंडल में मिल जाता है आपको। जो ओवरऑल मॉक टेस्ट होता है प्लांट साइंस का, वो भी आई थिंक उसी में इंक्लूड होकर मिल जाता है आपको बाद में जब भी वो लॉन्च होता है। तो आई थिंक ये सफिशियंट है, 5,000 कुछ ज्यादा नहीं है। बाकी अगर किसी को लगता है कि हाँ ये 5,000 ज्यादा है, तो ग्रैंड मॉक टेस्ट जो कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपना लक देख सकता है कि हाँ वो कहाँ पे स्टैंड करता है, ऑब्वियसली उसमें लगा, अगर मेहनत वो कर। कुछ भी मतलब अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि सबका लेवल वही होता है ना, कि हम अगर दिसंबर में यूजुअली हम लॉन्च करते हैं ग्रैंड मॉक टेस्ट, कि सबका प्रिपरेशन उसी लेवल पर रहता है। सो जो बंदा मतलब सीरियसली डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहा हो और टारगेट कर रहा हो कि ग्रैंड मॉक टेस्ट लेके मैं कोर्स खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं, तो ऑब्वियसली ही और शी कैन गो फॉर द मॉक टेस्ट। आवर ग्रैंड मॉक टेस्ट विल बी held in the month of December. So if you are preparing for these exams, डू योर सेल्फ स्टडी, प्रिपेयर वेल, जितना हो सके उतना प्रिपेयर कर लो। उसके बाद ये ग्रैंड मॉक टेस्ट अटेंड करके यू कैन कम टू अवर प्लेटफॉर्म विदाउट पेइंग एनीथिंग इफ यू आर टू मच burdened with financially. So this is our comment. And like just want to give you the information regarding our upcoming batches. We have included 2 batches for 2026 and 2025. 2025 would be the target batch 2025 Shrestha, and 2026 would be the foundation batch, which will be the valid for 2 years if you are targeting the 2026 Samartha. And all these batches, the online master course will have the live classes, recorded classes, mock tests, complete study materials, previous year discussions, plus PDFs, one-to-one mentorships, doubt clearing sessions, and like all-round support till your finish of your exams. So if you are interested, the links are available in the description box. And if you want to personally contact me before taking the course, you can contact me anytime. Thank you so much. And Tushar, thank you so much for your time. And thank you so much for for the mindset that you wish to guide your juniors with the proper details that you have given in this complete video. I hope this video will be very much informative for all the students who are either doing the self study or going for any online classes or online coaching platforms. I hope this is a sufficient video which can tell the students how to prepare for the exams. So thank you so much for your time. I hope to see you soon in Delhi.